Namaste. Dear student, in present period, we want to discuss the next part of the vector that is called as a three-dimensional coordinate system. In short, we call it as a 3D. We know that when x-axis and y-axis intersect at 90 degrees, then the structure we call it as a two-dimensional coordinate system. Okay, any point in this plane has only two coordinates. We call it as a first as the x coordinate, second coordinate as a y coordinate, and this plane due to this intersection is divided into four parts. We call it as first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. So this plane is divided due to these two axes. These are infinite in directions. So this plane is divided into four parts and we call them as a quadrant. According to this quadrant, we are having coordinates as a positive, negative. So we are having positive coordinate in first quadrant. As x and y, both axes are positive. So in first quadrant, coordinates both, that is x and y, are positive. In second quadrant, first is negative, second is positive. And in third, both coordinates are negative. In fourth, first is positive, second is negative. So this is simple idea about the two-dimensional coordinate system. Any point, if I consider this as a P, then its coordinate, if I consider x and y, we draw a perpendicular on that x-axis. The length from the origin up to that perpendicular is the first coordinate of that point, and the height of this perpendicular, if I call that perpendicular as a PQ, this height is nothing but the second coordinate of the point P. So if I use the rectangular structure, this length is nothing but the length of the perpendicular from P on y-axis. This OM is nothing but PQ. So we know that the coordinate of this point P, which are x and y, these are nothing but the distance of that point P on the x-axis as well as height of that perpendicular. So these two distances are nothing but the coordinates of the point P. This happens in two-dimensional coordinate system when x and y axis are there. When a point is in space, अगर पॉइंट आपका स्पेस में है, ऑब्जेक्ट आपका अगर स्पेस में है और उसको अगर आप लोकेट करना चाहते हैं, उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, तो उसमें सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस कैपेबल नहीं है उस लोकेट करने के लिए उस पॉइंट को, तो उसमें और एक एक्सिस की जरूरत होती है. जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, दूसरा एक रीजन है कि तीसरी एक्सिस की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं तो इसके लेंथ भी अवेलेबल है, ब्रेड्थ भी अवेलेबल है और उसकी हाइट भी अवेलेबल है. तो ये तीनों पैरामीटर कभी अगर डिस्क्राइब करना है तो उस केस में आपको ये टू डायमेंशनल फिगर हेल्प नहीं करती है, तो उस केस में आपको तीसरी एक्सिस की जरूरत होती है, वो तीसरा पैरामीटर ताकि तैयार हो सके. तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऑलरेडी आपके पास आपने यूज किए कई बार. आपको और एक एक्सिस की जरूरत है. स्पेस में कोई भी पॉइंट लोकेट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसको और एक एक्सिस की जरूरत है जिसको आप जेड एक्सिस कहते हैं. तो ये तीनों एक्सिस में जो नेचर होगा, जैसे दोनों में परपेंडिकुलर का नेचर है, उसी तरह से तीनों एक्सिस में भी परपेंडिकुलर का नेचर आता है. मान लो अगर आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, और ये जो तीसरी एक्सिस है जिसको आप कहना चाहते हैं जेड एक्सिस, ये एक्स को भी परपेंडिकुलर होगी और ये वाई को भी परपेंडिकुलर होगी. अगर आपको इस प्लेन में, वैसे तो 3D दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्लेन में अगर आपको फिगर ड्रॉ ही करना है तीनों एक्सिस का यूज करके, तो आप अगर पहली एक्सिस, दूसरी एक्सिस और ये तीसरी एक्सिस का अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से एक जनरल फिगर मेंटेन होती है.
इसको अगर मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस, इफ दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, तीनों का इंटरसेक्शन वही होगा जो आपका यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन है, उसको आप कहते हैं ओरिजिन। तो किसी भी पॉइंट को आप लोकेट करते हैं स्पेस में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मिलते थे, यहाँ आपको किसी भी पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जिसको एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इनको आप कहना चाहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो स्पेस में, जिसको आप कहते हैं 3D, ये स्पेस में किसी भी पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर सकते हैं। पहला कोऑर्डिनेट कनेक्टेड टू एक्स एक्सिस, सेकंड कोऑर्डिनेट कनेक्टेड टू वाई एक्सिस, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट कनेक्टेड टू द जेड एक्सिस, दैट इज न्यू एक्सिस जेड एक्सिस। अब ये सिर्फ पॉजिटिव में आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये निगेटिव वाली एक्स एक्सिस भी आपको इस डायरेक्शन में, इनफाइनाइट डायरेक्शन में मिलती है, जिसको आप एक्स डैश कहेंगे। निगेटिव वाई एक्सिस भी होगी, और ये पॉजिटिव के अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सिस होगी, जिसको आप निगेटिव जेड एक्सिस भी कहना चाहते हैं। तो ये पॉजिटिव एक्सिस एज वेल एज निगेटिव एक्सिस, दोनों हर एक्सिस का यहाँ ये आपको यूज करना है। उसके लिए आपके पास एक फिगर है, ये एजुकेशनल टूल्स हमारे मिसेस ने तैयार किया है आपको सबको इससे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसका यूज करेंगे, उनको धन्यवाद कह के इसको आप डिस्क्राइब करेंगे। तो आपने ये तीनों एक्सिस का यहाँ रिप्रेजेंटेशन किया है। तो जो ये पहली एक्सिस है ब्लू कलर में, जिसको आप कहना चाहते हैं एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये एक्स एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन में भी है। दूसरी एक्सिस जो रेड कलर में आपको दिखाई देती है, जिसको कहना चाहते हैं वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस यहाँ है, और ओरिजिन की तरफ यहाँ अगर आप यूज करते हैं तो ये निगेटिव वाई एक्सिस होगी। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, साथ में थर्ड एक्सिस होगी, दैट इज कॉल्ड एज जेड एक्सिस। तो ये पॉजिटिव वाली जेड एक्सिस और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ आपको निगेटिव जेड एक्सिस मिलती है। अब आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ये पूरे स्पेस को डिवाइड करता है 8 पार्ट्स में। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव निगेटिव जेड एक्सिस, जैसे ये 2 एक्सिस ये प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको आप क्वाड्रेंट कहते हैं। यहाँ ये जो आपका स्पेस है, पूरा जो स्पेस है, ये 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है, जिसमें से पहला अगर एग्जांपल लेते हैं, तो मेरे पास इस स्पेस का जो पहला पार्ट आप डिस्क्राइब करेंगे, तो उसमें आपको ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस का यूज करके एक आपको पार्ट मिलता है स्पेस का, और जो स्पेस का पार्ट मिलता है उसको आप कहना चाहते हैं ऑक्टेंट। तो स्पेस के इन ऑल वी आर हैविंग 8 ऑक्टेंट्स। तो स्पेस डिवाइड होता है 8 ऑक्टेंट्स में। उसमें से पहला अगर आप ऑक्टेंट चेक करना चाहते हैं, तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन। अब इसको प्लेन को भी डिवाइड करने, प्लेन को भी डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास आइडिया है कि कौन सा प्लेन है। तो आप यहाँ चेक करते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, का मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस का यूज करके जो प्लेन तैयार होता है, जैसे मैं जिस प्लेन के ऊपर खड़ा हूं, उस प्लेन को मैं कह सकता हूं ये एक्स वाई प्लेन है। अगर मैं ये कॉर्नर के पास इसको एक्स एक्सिस कहता हूं, दूसरे कॉर्नर के साइड की जो वॉल है उसको अगर मैं वाई एक्सिस कहता हूं, और ऊपर जो आपके पास कॉर्नर का पार्ट है उसको अगर मैं जेड एक्सिस कहता हूं, तो एक रूम जो आपको दिखाई देती है, ये जो रूम आपको दिखाई देती है, जिसमें ये 4 वॉल्स है और नीचे का और ऊपर का फ्लोर मिला के ये 6 प्लेन्स मिलते हैं। फिलहाल मेरे पास 4 वॉल्स है, नीचे का फ्लोर है और ऊपर का भी फ्लोर है, तो ये 6 प्लेन्स है मेरे पास। ओके, उसमें से मैं कह सकता हूं जिस प्लेन में मैं खड़ा हूं, उस प्लेन को कौन से 2 एक्सिस ने तैयार किया है, उस प्लेन को तैयार किया है। अगर मैं इसको कहता हूं ये कॉर्नर आपके रूम का है, ये कॉर्नर आपके रूम का है, तो ये जो प्लेन आपको तैयार हुआ है,
ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब इसको तैयार करने के लिए कौन से दो एक्सिस यूज हुए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस प्लेन को आप कहेंगे एक्स वाई प्लेन। ओके, अब इसमें इसके बारे में और एक इंफॉर्मेशन आप अटैच कर सकते हैं इसके साथ। एक्स वाई प्लेन अगर है तो एक्स वाई प्लेन में कोई भी अगर आपका पॉइंट है तो आप कह सकते हैं कि ये जो एक्स वाई प्लेन है जेड एक्सिस को, इस जेड एक्सिस को कौन से पॉइंट के पास इंटरसेक्ट हुआ है, वो जीरो के पास इंटरसेक्ट हुआ है, ओरिजिन के पास इंटरसेक्ट हुआ है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0। तो ये जो प्लेन है आपका एक्स वाई प्लेन नाम का, ये जो प्लेन है ये ओरिजिन को इंटरसेक्ट हुआ है। तो इस एक्स वाई प्लेन में हर पॉइंट का तीसरा कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। एक्स वाई प्लेन में, इस एक्स वाई प्लेन में तीसरा कोऑर्डिनेट जिसको कहते हैं जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। और जेड अगर 0 होता है हर पॉइंट का इस प्लेन में, तो आप कहना चाहते हैं कि इस एक्स वाई प्लेन का खुद का इक्वेशन, इस एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या है, तो z इज इक्वल टू 0 है। उसी तरह से अगर आप ये इधर का प्लेन यूज करते हैं, यहाँ y और z एक्सिस का यूज करके एक प्लेन तैयार हुआ है। जैसे ये वॉल है मेरे सामने जिसमें y एक्सिस और z एक्सिस का यूज करके वो प्लेन तैयार हुआ है। तो ये yz नाम का जो प्लेन है, ये yz वाला प्लेन भी x एक्सिस को जो इंटरसेक्ट होता है वो ओरिजिन के पास इंटरसेक्ट होता है। इसलिए इस प्लेन के ऊपर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है वो हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये जो yz नाम का प्लेन है, yz नाम का जो प्लेन है उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब यही इसका इक्वेशन है। अगर आप कभी निकालना चाहते हो yz प्लेन का इक्वेशन क्या है, तो आप डायरेक्टली कहना चाहते हो yz प्लेन का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 है। उसी तरह से ये जो प्लेन आपको दिखाई देता है जिसको आप xz प्लेन कहते हैं, x एक्सिस एंड z एक्सिस का यूज करके ये प्लेन तैयार हुआ है। तो ये xz नाम के प्लेन में आप अगर y कोऑर्डिनेट हर पॉइंट का चेक करते हैं तो हमेशा वो 0 ही होता है, क्योंकि ये जो प्लेन है ये y एक्सिस को ओरिजिन के पास इंटरसेक्ट होता है। और जहां z कोऑर्डिनेट 0 होता है, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है और z भी 0 होगा यहाँ, लेकिन ओरिजिन के पास ये पूरा प्लेन z को इंटरसेक्ट करता है। तो उसमें इस प्लेन में भले x एंड y कोऑर्डिनेट अलग अलग रहेंगे पॉइंट्स के, लेकिन उनका z कोऑर्डिनेट सॉरी उनका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। उनका y कोऑर्डिनेट इस प्लेन के अंदर उनका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो xz नाम का प्लेन है उसमें हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब यही उसका इक्वेशन है। तो इक्वेशन अगर आप कहना चाहते हैं xz प्लेन का, तो xz प्लेन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस है। अगर कोई पॉइंट ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर है, तो x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट उसके 2 इस नंबर के पास है, पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर अगर 2 नंबर के पास कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आपको अगर फाइंड करना है तो क्या हो सकते हैं। जैसे प्लेन के अंदर अपने जो पॉइंट्स है उनको एक एक जो 0 रहने वाला कोऑर्डिनेट है उसको आपने चेक किया है, लेकिन अब एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, मेरी एक्सिस है पहली एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली एक्स एक्सिस के ऊपर 2 इस डिस्टेंस के ऊपर ओरिजिन से पॉजिटिव 2 के पास कोई अगर पॉइंट है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। तो लिखते समय क्या करना पड़ेगा, पहला तो आप x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x कोऑर्डिनेट मींस उस पॉइंट का अगर आप नाम यूज करते हैं, मान लो अगर यहाँ P है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आई एम यूजिंग P एट दिस पोजीशन, तो इस P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, वो डिस्टेंस है 2। वो उस P से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं आप y और z एक्सिस के ऊपर, तो परपेंडिकुलर ओरिजिन के पास ही आते हैं और ओरिजिन के पास वो नंबर होते हैं 0 0। तो जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ला है, जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ला है 2 डिस्टेंस के पास, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कह सकते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 2 0 0। अगर कोई पॉइंट आपका पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर है और डिस्टेंस मान लो 2 ही है, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर है,
यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर है और डिस्टेंस 2 ही है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप फाइंड करते समय पहला आपको लिखना है एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर आप अगर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर 0 के पास मिलेगा, तो यहाँ आपको ये 0 मिलता है पहला, दूसरा 2 है और तीसरा जो है वो जेड के ऊपर आप ड्रॉ करते हैं तो 0 के पास ही आता है, एक्सिस के ऊपर के पॉइंट है। और यही पॉइंट आप अगर उतने डिस्टेंस के ऊपर यहाँ लेते हैं, आर नाम का पॉइंट है, डिस्टेंस 2 ही है, लेकिन उस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट आप फाइंड करते हैं तो इस पॉइंट से आर से जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं दोनों एक्सिस के ऊपर, तो उसमें से एक्स एक्सिस के ऊपर 0 के पास आता है, वाई एक्सिस के ऊपर भी 0 के पास आता है, और वो पॉइंट आपने लिया है 2 के पास, तो उसका थर्ड कोऑर्डिनेट जिसको आप जेड कोऑर्डिनेट कहना चाहते हैं वो 2 होता है। तो इस तरह से एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट्स है तो उनके कोऑर्डिनेट आप डिसाइड कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट टारगेट होता है, कोई पॉइंट अगर स्पेस में है, कोई पॉइंट अगर स्पेस में है, तो स्पेस में पॉइंट अगर है तो उसके कोऑर्डिनेट, जैसे आपका यहाँ प्लेन में पॉइंट है तो क्या करते हैं आप, यहाँ एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो परपेंडिकुलर है, जिन नंबर्स के पास वो परपेंडिकुलर आपको मिलते हैं वो नंबर ही उसके कोऑर्डिनेट्स के लिए यूज करते हैं। उसी तरह से स्पेस में अगर आप पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहते हैं तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करते समय आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं और वो परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना चाहते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर ड्रॉ करना चाहते हैं। अब कौन से प्लेन्स है, अब उसके लिए आपके पास ये सिंपल फिगर आपको यहाँ दिखाई देती है। तो मेरे पास एक पी नाम का पॉइंट है, ये पी स्पेस में है, तो पी नाम का पॉइंट जो आप स्पेस में लेना चाहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करना चाहते हैं, तो ये प्लेन में जो आपने स्पेस में जो आपने पॉइंट लिया है पी नाम का, उस पी से पहला परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करना चाहते हैं इस पहले प्लेन के ऊपर जिसको आप कहते हैं एक्स वाई प्लेन। दूसरा परपेंडिकुलर होगा जो आप इस एक्स जेड प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना चाहते हैं। तीसरा परपेंडिकुलर होगा जो एक्स जेड प्लेन के ऊपर वाई जेड प्लेन के ऊपर आता है। तो पहला परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन के ऊपर जिसको आपने कहा है दैट इज पीएल। दूसरा परपेंडिकुलर जो वाई जेड प्लेन के ऊपर आता है जिसका नाम आप लेना चाहते हैं पीएम। और तीसरा परपेंडिकुलर जो आपको लेना है इस एक्स जेड प्लेन्स के ऊपर। तो ये जो परपेंडिकुलर आपने प्लेन्स के ऊपर आपने ड्रॉ किया है, ये प्लेन्स तक का डिस्टेंस, उस परपेंडिकुलर का प्लेन तक का डिस्टेंस ही उनका पहला दूसरा तीसरा कोऑर्डिनेट होता है। आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पी से कौन से प्लेन के ऊपर, आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वाई जेड प्लेन के ऊपर, ये जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर मीन्स ये डिस्टेंस, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में ये अपोजिट साइड मेंटेन होते हैं इक्वल, तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहता है और वही आपको यहां मिलता है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस वाई जेड प्लेन के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर इसकी लेंथ देता है, ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर की वही लेंथ आपको यहां मिलती है एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो नंबर होगा वो नंबर इस पी का पहला कोऑर्डिनेट। आपने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस मान लो एक्स जेड प्लेन के ऊपर, तो एक्स जेड प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये परपेंडिकुलर ये लेंथ देता है, और ये लेंथ इसको अगर आप कंपेयर करते हैं इसके साथ तो ये वाई एक्सिस के ऊपर जिस नंबर के पास आपको मिलता है परपेंडिकुलर का करस्पॉन्डिंग ज्वाइनिंग पॉइंट रेक्टेंगल के स्ट्रक्चर में बना के, तो ये आपको मिलता है उस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट। और आपने परपेंडिकुलर जो हाइट जो कह रहे हैं आप, जो परपेंडिकुलर एक्स वाई के ऊपर डाला है प्लेन के ऊपर, ये परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस मिलता है, ये परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस मिलता है। तो ये वॉल आपको जेड एक्सिस तक जहां तक मिलती है परपेंडिकुलर के हाइट तक के रेक्टेंगल के स्ट्रक्चर से, तो ये उस पी का तीसरा कोऑर्डिनेट होता है। तो इस तरह से
किसी भी ऑक्टेंट में कोई पॉइंट अगर अवेलेबल है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप 3 प्लेन्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर जो मिलते हैं उनका लेंथ ही उस पहले, दूसरे और तीसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। अब मान लो आपके पास अगर ऑलरेडी कोई पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, तो उसका उसका पहला जो कोऑर्डिनेट होगा, ये पहला कोऑर्डिनेट आप अगर उसको मैग्नीट्यूड में लेते हैं तो ये डिस्टेंस होता है। पहला कोऑर्डिनेट उस पी का अगर लेते हैं तो ये डिस्टेंस होता है। पहला कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होता है और तीसरा कोऑर्डिनेट उसका ये डिस्टेंस देता है। वो कोऑर्डिनेट्स अगर आप मैग्नीट्यूड में यूज करते हैं तो ये पी के तरफ जाने के लिए 3 डिस्टेंसेस कवर करने पड़ते हैं। पहला ये एक्स एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस, दूसरा जिसको आप वाई एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस कह सकते हैं, और तीसरा जो हाइट है वो जेड एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस कह सकते हैं। तो इस तरह से आपके स्पेस में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है, तो कोऑर्डिनेट से ये डिस्टेंसेस आप कह सकते हैं क्या हो सकते हैं। जैसे प्लेन में आपने कहा है कि उसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स एंड वाई है तो ये डिस्टेंस एक्स होता है और